યોગ્ય સ્થાન ગ્રહણ કરી અમને સહકાર આપશો। સાથે જ આ કાર્યક્રમની ગરિમા જળવાય પંચાલ ઝોન કોર્ડિનેટર જૈનાબેન, કોર્ડિનેટર મીનાક્ષીબેન, કોર્ડિનેટર શ્રી સુનિલભાઈ પટેલ, कोऑर्डिनेटर श्री इंद्रजीत सिंह परमार, मंच पर सादर आमंत्रित करिए पधारे हैं। साथ में लक्ष्मण भाई गुरवानी, राज्य प्रभारी महोदय, आप भी सादर आमंत्रित मंच पे आमंत्रित करने के लिए श्री राजेश भाई पंचाल, स्टेट कोऑर्डिनेटर जैनाबेन, जोन कोऑर्डिनेटर मीनाक्षीबेन, कोऑर्डिनेटर सुनील भाई पटेल, कोऑर्डिनेटर इंद्रजीत, साथ में हमारे स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्र भाई भी मौजूद है, श्री लक्ष्मण भाई गुरवानी जी। करता ध्वनि से रोगियों की परीक्षा है, सभी को शांति से अपना अपना स्थान से लेना है। आदरणीय भाई श्री हमारे गुजरात में का आशीर्वाद भी शुरू हो जाएगा, आप सभी को आनंद भी आएगा। 99% शांति से लोग बैठे, शांत कराने के लिए भी थोड़ी आवाज़ करें, आवाज़ नहीं करनी है, बहुत मर्यादा के साथ अपने कर्तव्य को निभाना है। तो इसी तरह से खूब आनंद लें, बहुत अच्छा लगता है। आज आप सभी घर घर में जाएंगे, भारत माता की वंदे। हमारे बीच में माननीय हमारे आदरणीय शीशपाल जी, जिनका जुनून, जिनका उत्साह पूरे गुजरात के जिम्मेदारी निभाती है, तो बहुत बड़ी आज इस कार्य में, ईश्वरीय कार्य में जुटी हुई है। सभी का हृदय से आगे सभी महानुभाव न्यूज चैनल यहाँ कितने भी नामी अनामी મહામહિમ રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજી જ્યારે આપણા વચ્ચે પધારશે ત્યારે આપણે સેકન્ડ સેશન ચાલુ કરીશું, પણ આ પ્રથમ સેશનમાં આપની ઉર્જા વધારવા માટે, આપને શક્તિ આપવા માટે અને યોગ શું છે, યોગ કેવી રીતે કરવું જોઈએ, આપણે બધા 100 યોગના અભ્યાસી છીએ, तो अपने हाथ 15-20 मिनट योग करीशू। तैयार छो? हाँ। तैयार छो योग करवा माटे? बधा तैयार। तो सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित हमारा परम मित्र, एक मोटा उद्योगपति, एक विशाल महान, एक आध्यात्मिक व्यक्ति आदरणीय प्रकाश भाई वर्मोरा अपना बच्चे उपस्थित थे। एना वाले फरीथी जोरदार अभिवादन करिए, स्वागत करिए। वडोदरा शहरना पूर्व स्टेન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પણ આપણા વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, એમનું પણ જોરદાર કરતલ ધ્વનિથી અભિનંદન કરીએ। અને અમારા સ્ટેટ કોર્ડિનેટર આદરણીય રાજેશભાઈ પંચાલ અને આદરણીય લક્ષ્મણભાઈ ગુરવાનીજીનું હું સ્વાગત કરું છું। અને આપ સૌ અહીંયાથી આવેલા शहरना प्रतिष्ठित नागरिकों,
समस्त योग कोच, योग ट्रेनर, योग साधकोનું હું સ્વાગત કરું છું. આપ સૌને પ્રણામ અને વંદન કરું. મારા અહીંયા વિશેષ આમંત્રણ મેં એક છે મારા મિત્ર ચિંતનભાઈ જૈન પણ વચ્ચે આવ્યા છે, એમનું પણ સ્વાગત કરું છું. ચિંતનભાઈનો ગાયત્રી પરિવાર હાર્ટફુલનેસ સેન્ટર એ અમારા ભાવિનભાઈ આવ્યા છે. વિશેષ ગાયત્રી પરિવારથી એક મોટી ટીમ ગાયત્રી પરિવારથી આવી છે. ગાયત્રી પરિવાર, આર્ય સમાજ, પતંજલિ, આર્ટ ઓફ લિવિંગ, બધી જ યોગની સાથે જોડાયેલી સંસ્થાઓનું બધાનું સ્વાગત કરું છું. योग આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિની દેન છે. આપણા ઋષિ મુનિઓ યોગી હતા. યોગ, ધ્યાન અને આયુર્વેદના સહારે 200 વર્ષ સ્વસ્થ જીવન જીવતા હતા. પણ આજે બેઠાડું જીવન, કસરતનો અભાવ અને માનસિક તણાવના લીધે રોગો વધ્યા છે. એનું સમાધાન છે યોગ. આપણા દેશના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના સંકલ્પથી, એમની પ્રેરણાથી, એમના પ્રયત્નથી 21 જૂન આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ આખી દુનિયામાં ઉજવાય છે. એ આપણા માટે ખૂબ ગર્વ અને ગૌરવની વાત છે. આપણા માટે આનંદની વાત છે કે આપણા દેશના વડાપ્રધાન એક યોગી વડાપ્રધાન છે, એક આધ્યાત્મિક વડાપ્રધાન છે. એ દેશમાં યોગ, ધર્મ, અધ્યાત્મ, સેવાને વધારવા માંગે છે અને ભારતને વિશ્વગુરુ બનાવવા માંગે છે. એવા મહાન રાષ્ટ્રઋષિ માટે આપણે અભિનંદન કરીએ, એમને વંદન કરીએ કે આપણે દેશના વડાપ્રધાન છે. મિત્રો, આપણે સૌભાગ્યશાળી છીએ કે એમના સમયમાં આપણો જન્મ થયો છે અને ભારતને આપણે એક વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવું છે. ભારતને 2047 પહેલા વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવાનું છે અને ગુજરાત 2047 પહેલા વિકસિત રાષ્ટ્ર બને આવનાર એક દશકની અંદર એના માટે ગુજરાત રાજ્ય સરકારના આધ્યાત્મિક મુખ્યમંત્રી આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબે ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડનું ગઠન કર્યું છે, જેથી એક ગુજરાતી યોગી બને, નિરોગી બને, સમાજ માટે સહયોગી અને રાષ્ટ્ર માટે ઉપયોગી બને. આ ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ ગૃહ અને રમતગમત મંત્રી આદરણીય હર્ષભાઈ સંઘવીજીના માર્ગદર્શનમાં કામ કરે છે અને આ યોગ બોર્ડના માધ્યમથી યોગ એક જન આંદોલન બન્યું છે. જન આંદોલન બન્યું છે. ઘર ઘર સુધી હવે યોગની વાત થાય. સ્વસ્થ વ્યક્તિ માટે યોગ એક જીવન પદ્ધતિ છે. બીમાર વ્યક્તિ માટે યોગ એક ચિકિત્સા પદ્ધતિ છે. આધ્યાત્મિક અને યોગી વ્યક્તિ માટે યોગ એક સાધના પદ્ધતિ છે. તમે જીવનમાં રોગોથી બચવા માંગતા હો, તણાવથી બચવા માંગતા હો અને જીવનના સમસ્ત સુખોને પ્રાપ્ત કરવા માંગતા હો તો આપને યોગની શરણમાં આવવું પડશે અને એના માટે આપને યોગ કરાવવા માટે ગુજરાત રાજ્ય યોગ કટિબદ્ધ છે. અહીંયા જેટલા લોકો તમે અંદર બેઠા છો, આટલા જ લોકો બહાર પણ એલઈડી પર વેટ કરી રહ્યા છે. આટલું એક યોગનો માહોલ બન્યું છે, એવું વાતાવરણ બન્યું છે. મિત્રો, આ વાતાવરણ માત્ર વડોદરા શહેરમાં નહીં, આખા ગુજરાતના 33 જિલ્લામાં આવું યોગનું વાતાવરણ બન્યું છે. હવે દરેક વ્યક્તિ ઈચ્છે છે કે મારે યોગને કરવું છે, મારે યોગને સમજવું છે, મારે યોગની શરણમાં આવવું છે. દરેક વ્યક્તિની ઈચ્છા છે. કાર્યકર્તાઓ जैसे વધારે નહીં, क्योंकि આ ધરતી પર ના જ્યાં સુધી માનવ રહેશે ત્યાં સુધી દાનવ પણ રહેશે. इसी कार्य को और प्रोत्साहन देने के लिए, इसी कार्य को और शक्ति देने के लिए गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी आज हमारे बीच में आ रहे हैं. मेरी उनसे मुलाकात होती है बार बार. जब मुलाकात होती है तो आचार्य देवव्रत जी कहते हैं कि शिषपाल जी, योग के साथ साथ प्राकृतिक आहार को भी प्रमोट करना उतना ही जरूरी है. क्यों? आप सिर्फ योग करोगे और जहर खाओगे तो स्वस्थ रह नहीं पाओगे. योग और आहार का आपस में संबंध है, आपस में तालमेल है. जो योगी है वही जानता है कि मुझे आहार क्या लेना, क्या नहीं लेना. सात्विक आहार कौन सा है? अब प्राकृतिक आहार, सात्विक आहार से भी आगे प्राकृतिक आहार. माननीय आचार्य देवव्रत जी की प्रेरणा से उन्होंने 9 लाख से ज्यादा किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा है और 9 लाख जो हमारे गुजरात के किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं और जो प्राकृतिक अन्न पैदा कर रहे हैं, वो फल, फ्रूट, सब्जियां, अनाज जो पैदा कर रहे हैं, वो अनाज हर जन जन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे. उसके लिए ये प्रयत्न है
और आज से ये गुजरात योग बोर्ड के कार्य में एक कार्य और ऐड होने जा रहा है कि जैसे हम घर घर योग को पहुंचाएंगे, ऐसे है हम घर घर में प्राकृतिक आहार को भी पहुंचाएंगे। हमारा मकसद है कृषि क्रांति और ऋषि क्रांति, सबको योग से जोड़कर देश में ऋषि क्रांति पैदा करनी है और सबको प्राकृतिक आहार से जोड़कर एक कृषि क्रांति इस देश में लानी है। हमारे देश के किसानों की आवक को डबल कैसे किया जाए, हमारे देश के किसानों को समृद्ध कैसे बनाया जाए। मित्रों, जब हमारे देश के किसान प्राकृतिक आहार का उत्पादन करेंगे तो उनका खर्चा बहुत कम होगा। उनका खर्चा कम होने से आवक अपने आप ही बढ़ जाएगी। प्राकृतिक आहार किसे कहते हैं? प्राकृतिक आहार के बारे में आचार्य देवव्रत जी आपको पूरी तरह से बताएंगे। वो 1 घंटे तक आपको पूरा मार्गदर्शन देंगे। आज जब आप उनको सुनोगे तो आपको लगेगा कि जो अब तक हम खा रहे थे वो जहर खा रहे थे। अब तक हम बीमार क्यों हैं, हमें डायबिटीज क्यों है, हमें हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, कैंसर क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा आहार ठीक नहीं है। आज महामहिम राज्यपाल आपको कैंसर से बचाने के लिए आ रहे हैं, वो आपको हार्ट अटैक से बचाने के लिए आ रहे हैं, वो आपको बीमारियों से बचाने के लिए आ रहे हैं और एक एक व्यक्ति को स्वस्थ बनाने के लिए आ रहे हैं। मित्रों, हम जो खाते हैं, जो हमारा आहार है, वही हमारी औषध है। हमारी औषध कौन सी है? हमारा आहार ही हमारी औषध है, औषध है। तो आहार के बारे में हम आज का पूरा सेशन ही आहार के बारे में। मैं जब भी जिन लोगों से मिलता हूं वो सब लोग ये चाहते हैं कि शीशपाल जी, हम प्राकृतिक आहार लाना चाहते हैं, हमें नेचुरल फूड की जरूरत है। हम अपने को, स्वयं को, अपने परिवार के, अपने बच्चों को कैंसर से, हार्ट अटैक से, बीमारियों से बचाना चाहते हैं। पर ये नेचुरल फूड मिलता कहाँ है, ये उपलब्ध कहाँ होगा, वो वाकई में नेचुरल फूड है कि नहीं, इस तरह के हमारे अंदर हमें संशय रहता है कि उसका सही स्थान कौन सा है मिलने का। तो मित्रों, आज आपको प्राकृतिक आहार कहाँ से मिलेगा? आज हमने किसानों को भी बुलाया है, उन 200 से ज़्यादा किसानों को बुलाया है जो प्राकृतिक खेती करते हैं और वो प्राकृतिक खेती से किसानों से आपको जोड़ा जाएगा। किसानों से देखो, जिसका पेट बढ़ा हुआ है, जिसका डायबिटीज बढ़ा हुआ है, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिसका थायराइड बढ़ा हुआ है, जिसका तनाव बढ़ा हुआ है, वो नरक में जाएगा। और स्वर्ग में कैसे जाएगा? वो योग करने लग जाएगा तो डायबिटीज कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। तो आपको स्वर्ग जाने का मार्ग भी बता दूं। आपका पेट बढ़ गया, कोई बात, डायबिटीज बढ़ गया, कोई बात, बोले शीशपाल जी ये पेट बढ़ गया, कब क्या करें? आप ज्यादा डांटोगे नहीं। बीपी भी बढ़ा हुआ है, डायबिटीज भी बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, बढ़ तो गए। आप बताओ करना क्या? अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। आपको एक तो सूर्य नमस्कार करना। क्या करना है? सूर्य नमस्कार करना, 10 सूर्य नमस्कार रोज, और फिर आधा घंटा आपको प्राणायाम करना। मैं अभी आपको 5-7 मिनट प्राणायाम कराता हूँ। सीधा बैठिए, सीधा बैठिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। जिन्हें हाई बीपी है, जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, जिन्हें चक्कर आते हैं, जो कमजोर है वो धीरे धीरे, और जो स्वस्थ है वो तीव्र गति से करें। इस तरह भस्त्रिका कीजिए, 2 मिनट। आप 2 मिनट तीव्र गति से भस्त्रिका करोगे तो आपको हार्ट अटैक होगा? आपको तो क्या, आपके पड़ोसी को भी नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। 2 से 5 मिनट भस्त्रिका कीजिए। कमजोर है, बीमार है तो धीरे धीरे कीजिए, और स्वस्थ है तो तीव्र गति से कीजिए, तीव्र गति से भस्त्रिका। इससे आपके लंग्स मजबूत बनेंगे, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत बनेगा, आपका श्वसन तंत्र मजबूत बनेगा,
सर्दी जुकाम एलर्जी अस्थमा से बचाएगा, ये आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा, ये आपके लंग्स को मजबूत करेगा, लंग्स को मजबूत करेगा। ये जबरदस्त है। ये लंबी गहरी श्वास आपको तनाव से बचाएगी, ये लंबी गहरी श्वास आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाएगी, ये लंबी गहरी श्वास आपको दर्द से मुक्त करेगी, ये लंबी गहरी श्वास आपको विचारों से मुक्त करेगी, आपको निर्विचार बनाएगी, ये लंबी गहरी श्वास आपको स्वयं से भी जोड़ेगी, ये लंबी गहरी श्वास आपको भगवान से जोड़ेगी। आपके तो इतनी बड़ी बात है, लंबी गहरी श्वास हमें स्वास्थ्य भी देगी और हमें भगवान से भी जोड़ेगी। हाँ जोड़ेगी। आप करके देखिए, गुड अचीव करो और पाओ। मिनिमम 100 बार और मैक्सिमम 1000 बार। ये लंबी गहरी श्वास कितनी बार लेनी है बोलो? मिनिमम कितनी बार? 100 बार और मैक्सिमम 1000। तो बोलते ही नहीं है, बोलने से भी डर लगता है। और 1000 बार ना 5 मिनट में हो जाएगा। 5 मिनट में, 5 मिनट में आप इस गति से करो तो 1000 बार हो जाएगा। ये गति 5 मिनट, 5 मिनट कर लो। बीपी नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। 5 मिनट। दूसरा अभ्यास कपालभाति, श्वास बाहर छोड़ो। कपालभाति, कपालभाति ये आपके पाचन तंत्र को ठीक करता है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, एक्सक्रीटिव सिस्टम को और डाइजेस्टिव सिस्टम को बैलेंस करता है। इससे आपका डायबिटीज क्योर होता है, इससे आपका लीवर किडनी आंतें मजबूत होती है। देखो, एक हाथ पेट पर रखिए, एक हाथ पेट पर रखो और श्वास को बाहर छोड़ो। पेट में वाइब्रेशन होता है, इससे लीवर किडनी आंतों को का वाइब्रेशन हो रहा है। साइंस का नियम है, जहां गति है वहां शक्ति है। बोलो मेरे साथ, साइंस का क्या नियम है? जहां गति है वहां शक्ति है। और पेट पे हाथ रखो तो पेट में गति हो रही है, श्वास को बाहर छोड़ो। पेट में गति है ना, तो लीवर को, किडनी को, आंतों को शक्ति मिल रही है। फिर हाथ अपना हार्ट पे रखो, हार्ट पे रखो हाथ, श्वास को बाहर छोड़ो। हार्ट में वाइब्रेशन हो रहा है ना, हार्ट में कितने लोगों को लग रहा है हार्ट में वाइब्रेशन हो रहा है? हाथ खड़ा कीजिए, सबको लग रहा है। हार्ट पे हाथ रखिए, कपालभाति कीजिए, तो इससे हार्ट मजबूत बनेगा, आपका हार्ट मजबूत बनेगा। फिर गले पे हाथ रखिए, गले पे, फिर कपालभाति कीजिए। गले में वाइब्रेशन होता है, तो कपालभाति करने से गले में वाइब्रेशन होता है, कपालभाति करने से हार्ट में वाइब्रेशन होता है, कपालभाति करने से पेट में वाइब्रेशन होता है। तो इससे आपका लीवर, किडनी, आंतें मजबूत होंगी। क्या मजबूत होगा बोलो? कपालभाति, लीवर, किडनी और आंतें मजबूत होंगी। कपालभाति करने से आपका हार्ट मजबूत होगा, कपालभाति करने से आपका विशुद्धि चक्र जागृत होगा। जब आपका लीवर खराब नहीं होगा, आपकी किडनी खराब नहीं होगी, आपकी आंतें खराब नहीं होगा, आपका हार्ट गड़बड़ नहीं करेगा, तो मरोगे कैसे बताओ? कैसे मरोगे? मर ही नहीं सकते। जितने दिन तक भगवान ने आपको इस धरती पर भेजा है, आप सब मरे मरे घूम रहे हो फाइल लेके। मुझे डायबिटीज हो गया, मुझे बीपी हो गया, हमारे माथू दुखे थे, वही माँ हमारी कमर दुखे। ये दर्द से बाहर निकलो। जब तक दर्द से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक तुम्हारा विकास नहीं होगा, तब तक तुम्हें खुद का भी पता नहीं चलेगा और भगवान का भी पता नहीं चलेगा। ये योग इतनी बड़ी शक्ति है। योग हमें पावर देता है। योग क्या देता है हमें? पावर। पावर। जिसके पास पावर है वो दुनिया चलाता है, और जिसके पास पावर नहीं है वो पुअर। हमें देश को पुअर बनाना है कि पावरफुल बनाना है? बोलो पावरफुल। तो क्या करना है? योग। तो कितने लोग आज संकल्प लेके जाते हैं कि मैं 365 दिन योग करूंगा? हाथ खड़ा कीजिए। वेरी गुड। आप सबके लिए जोरदार अब ये सतयोग, द्वापर योग, कल योग, अब कल युग के बाद आने वाला है योग युग। योग युग, और ये अनंत काल तक रहेगा योग युग। हमें इस योग को बदलना है। कल योग से योग की यात्रा करनी है, पूरा वाइब्रेशन करना है, पूरे देश को जगाना है। और आज आपकी शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए महामहिम गवर्नर साहब भी आपके बीच में आ रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी योग बोर्ड के कार्यक्रम में जल्दी ही आने वाले हैं। और इस योग को मित्रों, ये योग में इतनी शक्ति, मैंने बताया। थोड़ी देर में महामहिम राज्यपाल हमारे बीच में आने वाले हैं।
थोड़ी मैं और बात करूंगा, जो बात रहेगी उस वक्त फिर करूंगा। महामहिम राज्यपाल की उपस्थिति में और थोड़ी देर में महामहिम हमारे बीच में आ रहे हैं। उससे पहले हमारे परम मित्र धागंद्रा विधानसभा के धारासभ्य आदरणीय કે આપણને આ મનુષ્ય જન્મ મળ્યો એમાં પણ જ્યારે પ્રજાનું ઉત્થાન થવાનું હોય છે ને ત્યારે પ્રજામાં બે બાબત બનતી હોય છે। પ્રજામાં એક જાગૃતતા આવે અને પ્રજાને સાચું નેતૃત્વ મળે। પૃથ્વીના હજારો વર્ષ પછી આખા પૃથ્વીને એક એવું નેતૃત્વ મળ્યું છે કે એમના નેતૃત્વમાં આખી પૃથ્વીની ચેતના આજે આકાશને આંબા જઈ રહી છે, આકાશને આંબી રહી છે। માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ 2001માં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બન્યા, ગુજરાતમાં મોદી યુગ શરૂ થયો। 2014માં ભારતના વડાપ્રધાન બન્યા અને ભારતમાં મોદી યુગ શરૂ થયો અને 2023-24માં G20 સમિટ થઈ। વિશ્વ આખાને વસુધૈવ કુટુંબકમ, આખું વિશ્વ એક છે, એક પરિવાર છે, વન અર્થ વન ફેમિલી વન ફ્યુચરનો મંત્ર આપ્યો અને આખા પૃથ્વીમાં યુગ શરૂ થયો। એટલે આપણે સૌ ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણે મોદી યુગમાં આપણો જન્મ થયો છે। એટલે મિત્રો, મોદી સાહેબ તો આટલી પરિશ્રમની પરાકાષ્ઠા સર્જે છે, વિશ્વ આખાને દિશા આપે છે। ત્યારે 1947 પહેલા તો આપણે સૌ ભાગ્યશાળી છીએ કે મોદી સાહેબના યુગમાં આપણો જન્મ થયો છે। કમિટી પણ ડોક્ટર જીતેન્દ્રભાઈ પટેલ ઉપસ્થિત છે। સાહેબ, આપ ઉભા થાય ત્યારે ભારત માતાનો જયઘોષ બોલાવીશું અને કાર્યક્રમની વિધિવત શરૂઆત પણ કરીશું। રાજ્યપાલ મહોદય શ્રીમાન ભારત માતા કી જય, ભારત માતા કી જય, ભારત माता की जय, वंदे मातरम। साथ ही में उपस्थित है हमारे अध्यक्ष महोदय योग बोर्ड के श्रीमान शिशुपाल राजपूत जी, यही विस्तार के अकोटा मत विस्तार के माननीय धारासभ्य श्री विधायक हमारे श्रीमान चैतन्य भाई देसाई, पूर्व मेयर एवं सयाजीगंज मत विस्तार के विधायक श्रीमान केवी भाई रोकड़िया जी उपस्थित हैं। साथ ही में हड़वद धांगध्रा से पधारे हुए विधायक श्रीमान प्रकाश भाई वर्मोरा जी भी उपस्थित हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार। हमारे वडोदरा की महापौर प्रथम नागरिक श्रीमती पिंकीबेन सोनी भी उपस्थित हुई है। आप सभी का मंच पर स्वागत करते हैं। नमस्कार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग का आधार प्राकृतिक आहार परिसंवाद महामहिम राज्यपाल महोदय श्रीमान आचार्य देवव्रत जी के अध्यक्ष पद पे आज वडोदरा के सर सयाजीराव नगर गृह में आयोजित किया गया है। इस परिसंवाद में उपस्थित योग सेवक श्रीमान शिशुपाल जी, अध्यक्ष गुजरात राज्य योग बोर्ड एवं मंचासीन सभी महानुभाव, हमारे महापौर श्रीमती पिंकीबेन सोनी, सभी का हार्दिक निवेदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ में हमारे विधायक केवी भाई रोकड़िया जी, चैतन्य भाई देसाई, प्रकाश भाई वर्मोरा जी भी उपस्थित हैं। आप सभी को सादर निवेदन। और दीपज्योतिर्नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। ओम गंगणपते नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। धन्यवाद। प्रथम पूजा प्रतिष्ठा का गणों के राजा, रिद्धि सिद्धि के स्वामी,
सफलता के देवता के गणेश वंदना प्रस्तुत करने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ सांस्कृतिक कमेटी गुजरात योग बोर्ड की बहनों को। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि। गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गाननर्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय तुल्यप्राणाय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुदैवसिताराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुमातङ्गखण्डकाय सर्वराजाय गन्धाय सर्वगानश्रवणकरीणे गुणवते गणपते। एक बार फिर से करतल ध्वनि से प्रोत्साहित करेंगे हमारी सांस्कृतिक कमेटी की बहनों को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आइए अब गणेश वंदना के बाद हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय श्रीमान देवव्रत आचार्य जी का आभार। साथ ही में हमारे महापौर प्रथम नागरिक वडोदरा श्रीमती पिंकीबेन सोनी का स्वागत करने के लिए नम्र निवेदन करती हूँ श्री राजेश भाई पंचाल स्टेट कोऑर्डिनेटर को खेस एवं बुक अर्पित कर स्वागत करेंगे हमारे महापौर जी का श्री राजेश भाई पंचाल। करतल ध्वनि से सभागार गुंजनी चाहिए हर स्वागत सम्मान के लिए। ऐसे ही बहुत अच्छा हमको ज्ञान दिया है योग के बारे में। ऐसे हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय गुजरात योग बोर्ड योग सेवक श्रीमान शिशपाल राजपूत का स्वागत करेंगे हमारे जैनाबेन जोन कोऑर्डिनेटर। करतल ध्वनि से सभागार गुंजनी चाहिए। इसी विधानसभा से हमारे विधायक लोकप्रिय श्रीमान चैतन्य भाई देसाई का स्वागत करेंगे मीनाक्षीबेन कोऑर्डिनेटर। खेस एवं बुक अर्पित कर
हमारे पूर्व महापौर जी एवं सयाजीगंज मत विस्तार के बहुत लोकप्रिय विधायक श्रीमान गिरी भाई रुकड़िया जी का स्वागत करेंगे श्री सुनील भाई पटेल कोऑर्डिनेटर। इसी परंपरा को निभाते हुए आगे बढ़ते हैं और कर्तव्य ध्वनि से स्वागत भी करते हैं सबका। जिन्होंने हमारे प्रथम चरण में अपनी प्रसन्नता व्यक्त की, ऐसे तांगद्रा हड़बद के बहुत लोकप्रिय विधायक श्रीमान प्रकाश भाई वर्मोरा जी का स्वागत करेंगे श्री इंद्रजीत सिंह परमार कोऑर्डिनेटर श्री। धन्यवाद और आप सभी के लिए भी जोरदार कर्तव्य ध्वनि और बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आइए अब हम सब साथ मिलकर देखते हैं योगगढ़ जर्नी की क्विकी को। જે આપણા મનને જોડે તે યોગ છે, જે આપણા શરીરમાં ઉર્જા ઉત્પન્ન કરે તે યોગ છે, જે આપણને વિશ્વ સાથે જોડે તે યોગ છે। યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના અથાગ પ્રયાસોથી योग आज एक वैश्विक पर्व बन्યું છે। 21 जून आज योगનો पर्याय बन्યું છે। भारत के आह्वान पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। ગુજરાતમાં યોગને જન જન સુધી પહોંચાડવા 2019 થી ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ કાર્યરત છે। જેમ યોગ સહજતા શીખવે છે એ જ સાહજિકતા સાથે ગુજરાતના મૃદુ અને મક્કમ મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ નિરંતર નવી ઊંચાઈઓને પ્રાપ્ત કરી રહ્યું છે। योग बोर्डની રચનાના કારણે રાજ્યભરમાં 5000 થી વધુ લોકો યોગના માધ્યમથી આપણે રોજગારી પણ આપી શક્યા છે અને આ બધાના પરિણામે આજે નિઃશુલ્ક લોકો યોગ મેળવી રહ્યા છે। કોઈ પણ કાર્યને સફળ ત્યારે જ કહેવાય જ્યારે તે પરિણામલક્ષી હોય। તો આ રહ્યું ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડની સ્થાપનાથી અત્યાર સુધીના યોગ કાર્યનું રિપોર્ટ કાર્ડ। સમગ્ર ગુજરાતમાં દરેક જિલ્લા અને તાલુકાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા 500 યોગ કોર્સ તૈયાર કરવામાં આવ્યા, જેના માધ્યમથી તાલીમ દ્વારા 1 લાખ યોગ ટ્રેનર તૈયાર કરવામાં આવ્યા। આજે ગુજરાતભરમાં યોગ ફક્ત જાણકારી સુધી સીમિત ન રહે અને જીવનનો એક ભાગ બને તે માટે સવારે અને સાંજે 1000 થી વધારે યોગ ક્લાસ શરૂ થયા છે, જેના લીધે લાખો લોકોએ પોતાના જીવનશૈલીમાં યોગને અપનાવ્યો છે। આ ઉપરાંત દરેક જિલ્લામાં યોગ સંવાદ બેઠકના માધ્યમથી યોગનું એક વાતાવરણ ઊભું કરવામાં આવ્યું। અવિરત ચાલતા ટ્રેનિંગ કેમ્પમાં ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય પણ યોગ કોચિંગ ચાલતું રહેવું જોઈએ એ ભાવ સાથે ટેકનોલોજીના માધ્યમથી 7 દિવસ ઓનલાઈન એડવાન્સ ટ્રેનિંગ કેમ્પ, 100 કલાક ફિઝિકલ ઓનલાઈન ટ્રેનિંગ કેમ્પ યોજીને યોગની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી। 21 जून 2023 નો દિવસ અભૂતપૂર્વ રહ્યો, જ્યારે 1,53,000 થી વધુ લોકોએ સુરતમાં એક સાથે એક સ્થાન પર યોગ કર્યા અને સંપૂર્ણ વિશ્વમાં સૌથી વધારે એક સ્થાન પર યોગ કરવાનો ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો। સંસ્કૃતિઓએ મળીને આજે એક નવો ઇતિહાસ લખી દીધો છે। આપણે ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડનો આંકડો પાર કર્યો છે। ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ, સ્પોર્ટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ આ તમામ લોકોને હું અભિનંદન આપું છું। આ રેકોર્ડ બનાવીને ભારતમાં યોગના ક્ષેત્રે ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ અગ્રેસર છે એ વાત સાબિત કરી દીધી। આ સાથે યોગનું કાર્ય વધુ સારી રીતે થાય તે માટે યોગ શિક્ષક પ્રશિક્ષણ શિબિર અને પ્રોત્સાહન માટે યોગ કોચ અભિવાદન સમારોહ જેવા કાર્યક્રમનું આયોજન થયું। નાના બાળકોમાં પણ નાનપણથી જ યોગના સંસ્કાર રોપાય તે માટે સમર કેમ્પ યોજાયા। સમાજમાં યોગને લઈને સ્પર્ધા થાય તે માટે ઉત્સાહવર્ધક યોગ કોમ્પિટિશનનું પણ ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું। योग पे चर्चा હોય કે યોગ की बात, योग जागरण રેલી હોય કે યોગ કક્ષા સશક્તિકરણ અભિયાન કે પછી ઓફિસ યોગ કાર્યક્રમ જેવી નવતર પહેલના માધ્યમથી આજે લોકો મન ભરીને જીવવાની પદ્ધતિ શીખ્યા છે। યોગના આગ્રહી એવા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈની પ્રેરણાથી તથા રમતગમત યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગના મંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીના માર્ગદર્શનમાં આ યોગ મોડલ પૂરા દેશમાં અગ્રેસર બન્યું છે। ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડનો આ યોગ રિપોર્ટ કાર્ડ અભિવ્યક્તિ છે સંકલ્પથી સિદ્ધિની। योग संपर्कથી યોગ સમર્થન મેળવી યોગમય ગુજરાતના નિર્માણમાં આ અભિયાન મીલના પથ્થર સમાન સાબિત થશે। ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડના ઉર્જાવાન ચેરમેન યોગ સેવક શ્રી શિષપાલજી તથા તેમની ટીમ 1 લાખ કિલોમીટરનો સતત પ્રવાસ કરીને કટિબદ્ધ છે ગુજરાતના પ્રત્યેક જિલ્લા, તાલુકા, ગામથી ઘર સુધી યોગ પહોંચાડી યોગમય ગુજરાત બનાવવા। આ યોગ માત્ર હાથ પર હલાવવાનું કામ નથી। યોગ તમને સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડે છે, યોગ તમને શક્તિ સાથે જોડે છે, યોગ તમને ભક્તિ સાથે જોડે છે, યોગ તમને સંસ્કારો સાથે જોડે છે, યોગ તમને સંસ્કૃતિ સાથે જોડે છે, યોગ તમને સનાતન સાથે જોડે છે, યોગ તમને ધર્મ સાથે જોડે છે, યોગ તમને પ્રેમ સાથે જોડે છે, યોગ તમને વ્યાપાર સાથે જોડે છે, યોગ તમને પ્રેમ સાથે જોડે છે, યોગ તમને વિકાસ સાથે જોડે છે। યોગ તમારો સંપૂર્ણ વિકાસ કરે છે, તમને પૂર્ણ સફળતા સાથે જોડે છે। દરેક ભારતીયનું લક્ષ્ય છે કે ભારત વિશ્વગુરુ બને અને તે યોગના માધ્યમથી જ શક્ય બનશે। લક્ષ્ય ભવિષ્યમાં 10 લાખ યોગ ટ્રેનર તૈયાર કરવાનું।
લક્ષ્ય ગુજરાતના પ્રત્યેક ગામ અને સોસાયટીમાં યોગ વર્ગો શરૂ કરવાનું. લક્ષ્ય યુવાનોને યોગના માધ્યમથી રોજગાર સાથે જોડવાનું. લક્ષ્ય યુવાનોને હાર્ટ એટેકથી બચાવી નશામુક્ત ચરિત્રમાં તૈયાર કરી ભારતનું ગૌરવ વધારવાનું. લક્ષ્ય રોગમુક્ત, તણાવમુક્ત, નશામુક્ત સમાજ બનાવવાનું. લક્ષ્ય ગુજરાતમાં યોગનું વાતાવરણ થકી યોગ પ્રદેશ બનાવવાનું. તો આવો આપણે સૌ પણ યોગમય જીવનની સફરમાં જોડાઈએ અને સંકલ્પ લઈએ કે હવે તો બસ એક જ વાત, યોગમય બને ગુજરાત. સર્વે ભવन्तु સુખિનઃ, સર્વે સन्तु નિરામયા. और अभी हम सब जिनको सुनने जा रहे हैं इनका थोड़ा सा परिचय भी ले लेते हैं. आप 20 साल पर्यंत से योग के साथ जुड़े रहे हैं. समग्र गुजरात के प्रवास करके 50 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष तरीके से योग सिखा चुके हो. करीब 1 लाख से ज्यादा योग ट्रेनर्स को भी आप तैयार कर चुके हो. कोरोना के कठिन काल में हम सब जानते हैं कि सब क्वारंटाइन थे, लेकिन ये महाशय ऑफलाइन ऑनलाइन शिविर. स्वस्थ आदमी राष्ट्र की सबसे बड़ी धरोहर है. स्वस्थ व्यक्ति परिवार के लिए वरदान है. क्यों? वो ज्यादा से ज्यादा काम करेगा, ज्यादा से ज्यादा समाज के लिए उपयोगी होगा, ज्यादा से ज्यादा राष्ट्र को बढ़ाने का काम करेगा. और जो बीमार आदमी है उसको आयुर्वेद में पापी की संज्ञा दी है. पापी की संज्ञा मैंने नहीं, ऋषियों ने दी. क्यों? वो अपनी गलतियों से बीमार हुआ, ना योग किया, ना प्राणायाम किया, ना शुद्ध खान पान किया, वो बीमार होता है. अब बीमार वो होता, सेवा बाकी लोगों ने करनी पड़ती है. अब उसके पाप से आपको पड़ाई दुख में परिवार को भी साथ जोड़ लिया. उनके जो काम थे वो भी रुक गए. फिर रिश्तेदारी पता लेने आते, नहीं आए तो मुंह चढ़ाते हैं कि हम पता लेने नहीं आया. वो बेचारा पेट्रोल फूक के आता, अपना काम छोड़ के आता, घर वालों को बांध के रखा. एक की गलती कितनों ने भोगा दुख है कि नहीं? पाप. स्वस्थ रहना पुण्य है और स्वस्थ रहना पुण्य है. और स्वस्थ का आधार है इसमें जो पेट्रोल डीजल डालो वो शुद्ध डालो. मैं कई बार आश्चर्य करता हूँ. आपके यहाँ गुजरात में तो मैं बहुत अच्छी लोगों की परंपराएं देखता हूँ. मैं रहने वाला हूँ उत्तर भारत का, हरियाणा का. हरियाणा पंजाब की शादियों का आपने नहीं देखा होगा. वहाँ शादियां नहीं होती, वहाँ रैलियां होती. और उसमें वहाँ 2 आदमी शांति से नहीं बैठते. धड़ाम धड़ाम इतनी आवाज, शोर शराबा, उठ पटांग गीत, उठ पटांग खान पान. और उनके भोजन में जो बड़े लोग हैं ना, वो उसी पे सारी ताकत लगाते हैं. उनका भोजन पता क्या होता? 2-3 एकड़ में स्टॉल लगते हैं उनके, और उसमें 100 तरह की सब्जियां. जिसकी कम बनेगी वो छोटा और ज्यादा बनेगी वो बड़ा. यही उनकी मान्यता रहती है. अब मैंने क्या देखा, एक दिन एक लड़का का पिता घर में बहुत बढ़िया कंपनी की नई गाड़ी खरीद के लाया, कार गाड़ी. तो घर में बड़ी खुशी का माहौल, बहुत खुशी का माहौल, क्योंकि नई गाड़ी आई है. सवेरे बेटे ने गाड़ी निकाली. पिता ने कहा, बेटा कहाँ ले चले? कि पिताजी पेट्रोल डलवा के लाता हूं. तो पिता ने क्या बोला बेटे को? बेटा रुक रुक, कहाँ डलवाएगा? अब यही तो है पेट्रोल पंप साथ ना, इससे मैं डलवाना. वो जो 4 किलोमीटर आगे उससे डलवाना. क्यों? इसमें क्या दिक्कत है? कि ये मिलावटी पेट्रोल डालता है और वो ठीक डालता, उसमें डलवाना नहीं, गाड़ी खराब हो जाएगी. पिता कितना समझदार है. उसे गाड़ी की चिंता है कि इसकी लाइफ लॉन्ग तभी होगी जब इसमें पेट्रोल सही डलेगा. तो बेटे ने पिता की बात मानी और वो जो नजदीक पेट्रोल पंप था उस पे नहीं, 4 किलोमीटर दूर जाके गाड़ी में पेट्रोल डलवा के लाया. पिता भी समझदार और बेटा भी समझदार. अभी इन दोनों समझदारों के पास शाम के टाइम एक कार्ड आया शादी का, निमंत्रण आया शादी का. और
शादी थी अगले 7 दिन के बाद। पिता पुत्र ने 7 दिन पहले शादी की तैयारी शुरू की और तैयारी क्या की, दोनों गए और जो 4 एकड़ में स्टॉल लगे थे लाइन में लग गए, हर स्टॉल पे चेकिंग पूरी की, हर स्टॉल का माल थोड़ा थोड़ा उठाया और सारा अंदर वाली टैंकी में भेज दिया। ये वो समझदार हैं जो उस गाड़ी की तो चिंता करते थे जो लोहे की बनी, उसकी चिंता करते थे जो दोबारा भी खरीदी जा सकती है, लेकिन अपने वाली गाड़ी की कोई चिंता नहीं। इसमें क्या, वहीं पर खट्टा, वहीं पर मीठा, वहीं पर नमकीन, वहीं पर चाय, वहीं पर आइसक्रीम, दोनों आपस में चल रहे हैं और एक भी आइटम मिस नहीं किया दोनों, पूरा का पूरा प्रयोग। पता नहीं फिर मौका मिले या ना मिले। क्यों साहब, ऐसा होता है कि नहीं? अरे बताओ, भले आदमी, लोहे वाली गाड़ी में खतरा है मिलावटी तेल डल गया तो खराब होगी, और जो भगवान ने ये इतनी अनुपम अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप गाड़ी शरीर की दी, इसकी कोई चिंता नहीं। इसमें क्या माल डाल रहे, सब तरह का डंगा डालते, फिर साथ में दवाइयों का चक्र भी चलाते और 20 बीमारियां पैदा करके खटिया पे पड़ते हैं। आप भी दुखी होते हैं, लोगों को भी दुखी करते हैं। इस परंपरा से आप वो सेनानी हैं जो लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। आज फास्ट फूड, जंक फूड, ये जहर युवा पीढ़ी में इतना प्रचलित हो गया है कि बच्चे इसको बड़े लालायित होकर लेते हैं। आपको पता है क्यों लेते हैं? अभी ये तो रिसर्च आ गई है, आप भी जानते होंगे और आप बताते भी होंगे, आप इतना जानते होंगे कि कुछ ऐसे केमिकल इनमें डालते हैं फास्ट फूड, जंक फूड में लोग। मैकडॉनल्ड, एक बार नाम लो और युवाओं के मुंह में पानी आ जाता है। मैकडॉनल्ड नाम से ही पानी आ जाता है, क्योंकि ऐसे केमिकल इस फास्ट फूड, जंक फूड में डाले जाते हैं कि जो शरीर में, ब्लड में जाकर उसकी इच्छा पैदा करता है। और आप यहाँ माताएं बहनें इतनी बैठी, आप अपने हाथ से भोजन जो बनाती हैं घर में, उसको 4 दिन के बाद, आज बनाए हो को 4 दिन के बाद आप खाते हैं क्या? नहीं खाते ना। और ये जो आप अपने हाथ से बनाने वाली सब गृहिणियां जो मंत्र बोल के खाना बनाती हैं, अच्छी भावना से भोजन बनाती हैं, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बड़े लोग मेरे हाथ के भोजन से बलवान हो, बुद्धिमान हो, ऐसी भावना से बनाती। और आप जहां बच्चों को लोग भेज रहे हैं गाड़ियां उठा के, वो जो होटलों में ये जो मैकडॉनल्ड या ऐसे कोई भी हैं जो फास्ट फूड जंक फूड बनाते हैं, उनका पिज्जा 4 दिन का बना या 4 महीने का बना हुआ? समझ में आई? आप वाला तो 4 दिन में सड़ गया और उन वाला 6 महीने भी नहीं सड़ता बना हुआ। इसका मतलब आपकी एक्सपर्टी तो 0 है भोजन बनाने। वो तो बहुत समझदार है, जो आज बनाए 6 महीने भी नहीं सड़ता है। एक्सपर्टी नहीं है बहनों, आप सही हैं, वो गलत है। वो जो बनाते हैं उसको केमिकल से प्रिजर्व करते हैं, और जब बच्चे खाते हैं तो जहर केमिकल का अंदर जाकर वही तो एक कैंसर जैसे जहरों को पैदा करता है। वो जो बाजार में है, मैं अपनी बीती बता रहा हूं। मेरे घर में एक सेवक था जो भोजन में भी पत्नी का सेव करता, तो उसका एक विशेषता थी बेचारे की। वो घर जाता था तो कह के जाता 7 दिन में आऊंगा, महीने से पहले कभी नहीं आता था और उससे भी ज्यादा लगा देता था। तो फिर पत्नी परेशान होती थी, आने जाने वाले लोगों का भोजन इसे अकेला बनाना पड़ता था। तो एक बार पत्नी ने उसको कहा, भाई मैंने तो तू आया नहीं, एक दूसरा रख लिया, अब तू और कहीं देख।
मैं कई साल से तेरे को बरत रही हूँ, ऐसा उसने बोल दिया। वो बेचारा जब छुट्टी की तो वो एक होटल में लग गया कहीं, और होटल में उसने 6-7 महीने काम किया। फिर किन्हीं के द्वारा सूचना भिजवाई कि मैंने गलती कई बार की है, माता जी माफ करो और मेरे को दोबारा रखो। तो माता जी ने फिर बुला लिया उसको, तो वो आ गया। तो एक दिन मैं, ये सत्य घटना जो मैं आपको सुनाता हूँ, मैं किसी यात्रा पे निकला तो पत्नी ने कहा मैं रास्ते के लिए कुछ बांध देती हूँ आपको पाथे। मैंने कहा क्या जरूरत है, होटल है वहां मैं ले लूंगा। तो जब मैंने होटल की बात की तो पत्नी ने कुछ नहीं कहा, वो मेरा राजू सेवक था, वो दौड़ाया, वो पिताजी बोलता मेरे को। मैं कहा पिताजी होटल का मत खाना। मैं क्या बात है कि मैं 6 महीना होटल में ही काम करके आया, उसने ये मेरे को बोला। मैं कहा भाई वहां क्या होता है कि वहां पर तो 15-20 दिन की बनी हुई सब्जियां रहती हैं और सारी चीज ऐसी मिलती हैं। हम बनाते थे, और वो मेरे को उदाहरण दिया उसने कि 10 आदमी आए होटल में इकट्ठे और उन्होंने अलग अलग चीजें मंगवाई, किसी ने कोई वेजिटेबल, किसी ने कोई आइटम, और वो 15 मिनट में सारी तैयार होके आ जाती। इतनी स्पीड कहां से बनेगी बताओ? वो तो पहले से रखे हुए वहां फ्रीजर में, हम निकालते, गर्म करते, छोका लगाते और भेज देते। और वो ये कहता था हम जितने कर्मचारी काम करते थे, हम पीछे अपना भोजन अलग बनाते, आपके लिए तो वो जो बंद पैक है वही देते हैं। ये आपके लिए मैं बता रहा। और एक और नई, इससे भी खतरनाक, वो तो बच्चा था, उसने छोटी उम्र का, अभी मेरे को 80 वर्ष के, मैं गुरुकुल, मेरे 4 गुरुकुल चलते हैं हरियाणा, एक ओनली फॉर गर्ल्स के लिए, बेटियों के लिए, और 3 बेटों के। तो बेटियों का, अभी आप होके आए बेटों वाले में, तो वरमोरा साहब शीशपाल जी, तो बेटियों का जो गुरुकुल चलाते हैं न, जिनका वो जगह थी जो हमने ली, वो बाबू राजेंद्र नाथ बड़े अमीर समृद्ध व्यक्ति हैं अम्बाला के, हरियाणा में। उसने मेरे को बताया कि उनके मित्र दोस्त के 4 बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं अम्बाला में, और वो फैक्ट्री किस चीज की है? 5 स्टार बड़े बड़े होटल में भोजन पैक करके भेजने के लिए, यानी के लिए अम्बाला से भोजन बनता और मुंबई तक जाता है, अम्बाला से भोजन बनता कलकत्ता तक जाता है, अम्बाला से भोजन बनता और आपके अहमदाबाद तक आता है। उन्होंने बड़े बड़ी गाड़ियां रखी हैं एयर कंडीशन, उनमें वो भर के और होटलों में जाता है, और वहां से वो महीना भर आगे सप्लाई होता है। अब तो समझ गए होंगे ना कितना पवित्र भोजन। शाम को गाड़ियां तैयार हो जाती, चलो होटल में चलते, होटल में नहीं चलते, बीमारी लेने चलते। संकट, इससे बचो। अपने घर में मेरी माँ बहन जिस पवित्र मन से परिवार के लोगों के कल्याण की भावना से भोजन बनाएगी, होटल वाले की वो भावना है? वो तो सोचेगा खाए कुछ ना, पैसे सारे दे जाए। और माँ की इच्छा रहती कि मेरा अधिक से अधिक बढ़िया स्वादिष्ट भोजन खाए। कितना बड़ा विचारों का खेल है। और वो प्रिजर्व किए हुए केमिकल सब चीज में, अब तो रिपोर्ट आ रही जो डिब्बा बंद, पैकेट जो प्लास्टिक में बंद हैं, ये सब की सब चीजें स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं है। सबसे उत्तम भोजन है माता बहन के द्वारा घर में बनाया हुआ, अपने सामने दिया। भारत के लोग कितने ऊंची सोच के थे, ये अपने आप को मॉडर्न माने बैठे। हमारे यहाँ तो तीनों समय ताजा, एक गरीब की झोपड़ी में ताजा भोजन मिलता था। आज ये अरबोंपति सड़ा हुआ 20 दिन का खा करके मॉडर्न बने हुए। नहीं अंतर? बासा भोजन बुद्धि को भी बासा बना देता है, मन और शरीर को खराब करता है। सत्व आहार, आहार शुद्ध, सत्व शुद्धि, शुद्ध आहार। तो भाई और बहनों, लंबी बात न करते हुए
अंत में एक निवेदन करूंगा कि गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और प्रदेश सरकार के सहयोग से हमने पूरे प्रदेश में मैंने एक अभियान चला प्राकृतिक खेती का, यानी पूरे देश में। मैं पिछले दिनों गोवा, महाराष्ट्र, आपका उत्तराखंड, यूपी, आसाम, मेघालय, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में तो मैं 4 साल गवर्नर रहा यहाँ से पहले। अब हिमाचल प्रदेश में 99% जो पंचायतें हैं वहां सब खेडूत प्राकृतिक खेती करते हैं और पूरे देश में हमने अभियान चलाया। प्रधानमंत्री जी चाहते मेरे देश की पीढ़ी, मेरे देश के लोग स्वस्थ हों, निरोग हों और खेडूत समृद्ध हों और धरती मां जहरीली होने से बचे। इसके लिए इस समय गुजरात में 2 साल कोरोना ने भी खराब किए, लेकिन इन पिछले 2 साल में हमने 9 लाख खेडूत प्राकृतिक खेती से जोड़ दिए। और अब आप योगियों की भी टीम साथ में जुड़ गई है और खेडूत भी जुड़ेंगे, तो अगले 2 साल में हमारा लक्ष्य है कि हम गुजरात को जहर मुक्त प्रदेश बनाना। ये सारे देश का एक नेतृत्व कर पड़े। आज हमारी धरती माँ तड़प रही है, चिल्ला रही है। अब वो बेचारी जहर से दुखी हो चुकी, उसको बचाना। आपकी जानकारी के लिए, आप में ऐसे लोग जो खेती से जुड़े वो हाथ खड़ा करेंगे, जो खेती बाड़ी जिनके यहाँ होती है, काफी लोग, धन्यवाद। लेकिन जो नहीं करते उनके भी काम की बात है। आप ऐसा कौन व्यक्ति है जो भोजन नहीं लेता, जिसकी गाड़ी बिना ही खाने के चल रही है? कोई नहीं ना। तो आप ये समझो आप एक दूसरे के पूरक हो। खेडूत, अब आपने एक जो बताया भाई शिषपाल जी ने, अब हमने एक अभियान चलाया कि हमने फैमिली डॉक्टर नहीं चाहिए, हमने फैमिली डॉक्टर नहीं, हमें अब फैमिली प्राकृतिक खेडूत चाहिए। ठीक है, वो प्राकृतिक खेती करता है, खेडूत ढूंढो अपने पड़ोस में। अब हमने कोई भी प्रदेश का जिला नहीं छोड़ा, कोई गांव नहीं बचा जिसमें हमारे लोग नहीं गए। जो क्रांति आप योगियों ने की है, वही क्रांति प्राकृतिक खेती की चल रही है। ये बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे जितने डीएम हैं जिला में, जितने डीडीओ हैं पूरे गुजरात में, इन सब को लेकर के मैं अपने खेत में गया था, कुरुक्षेत्र हरियाणा में, अभी 2 महीना पहले। सब डीएम डीडीओ, और उनको मैंने अपना खेत दिखाया। हमारा 200 एकड़ का खेत है कुरुक्षेत्र गुरुकुल में, जिसमें मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ। एक बूंद भी यूरिया डीएपी जहर नहीं डालता। और गौ आधारित 350 गाय है मेरे पास, उनके द्वारा ही मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ। और भाई और बहनों, मेरा जो खेती करने वाले लोग, मैं पूछता हूँ आप ये क्यों डालते हैं? कि इसलिए डालते हैं कि पैदावार कम हो जाएगी, हमारा उत्पादन नहीं होगा। मैं अपने खेतों में इसलिए पूरे देश और दुनिया के लोगों को बुलाता हूँ कि आप देखो पैदावार घटती नहीं, मेरी तो बढ़ गई है। मेरी पैदावार खेती की रासायनिक यूरिया डालने वालों से ज्यादा होती है, क्योंकि मेरी धरती ज्यादा उपजाऊ बन गई है। इस यूरिया डीएपी ने सारे देश की धरती को बंजर बना दिया है। जब 60 के दशक में हरित क्रांति इस देश में आई, तो उस समय की रिपोर्ट है पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आज भी, कि उस समय सारे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था। अर्थात जैसे जंगल की भूमि उपजाऊ होती है, वैसे सारे देश की धरती थी। और आज इस समय प्यारे भाई और बहनों ध्यान से सुनो,
अभी रिपोर्ट आई है पूरे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2-2.5% से घट के 0.435 से नीचे आ गया, जहर बन गया, बर्बाद हो गई सारी जमीन, बिन उपजाऊ हो चुकी है। और इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम क्या हुआ? जब हरित क्रांति शुरू हुई उस समय साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट 1 हेक्टेयर में 13 किलो यूरिया डीएपी डालने के लिए बोलते थे और इस समय 300 किलो डालने के लिए बोलते। कितना अंतर आ गया? जो काम 13 किलो से होता था अब 300 किलो में होता है। और अब ये बढ़ने वाला है और बढ़ेगा। यूरिया डीएपी के आंकड़े मैंने निकलवाए। मनसुख मांडविया जी हमारे प्रदेश के ही मंत्री हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और उर्वरक मंत्री भी, बहुत भले आदमी। मेरे पास आते हैं, फोन करते हैं, बड़ी चिंता में रहते हैं कि मेरे को ऐसे विभाग मिले, एक तरफ मैं जहर बेच करके बीमार करता हूँ और फिर अस्पताल में ला जाकर ठीक करवाता हूँ। दोनों ही डिपार्टमेंट उनके, वो दुखी हैं कि जी आंकड़े दिए उन्होंने। 4 साल पहले 1.5 लाख करोड़ का यूरिया डीएपी आता था, अगले साल और बढ़ा, पिछले साल आके 2.5 लाख करोड़ पे टिक गया। और ये बढ़ रहा क्यों? क्योंकि धरती माँ बंजर हो चुकी है। जिस धरती माँ का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे, वो बंजर हो चुकी, होगी नहीं, हो चुकी है। अब हो क्या रहा है? ऐसे ही मानो जैसे बैलगाड़ी पे कमजोर बैल हो, वजन ज्यादा डाल दो तो आप उन बैलों को मारेंगे, वो थोड़ी दूर चलेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, फिर पीटेंगे, फिर थोड़ा चलेंगे, फिर रुकेंगे, फिर चाबुक लगाएंगे, थोड़ा चलेंगे, एक समय आएगा वो गिर जाएंगे। आप पीटते रहे तो भी नहीं उठेंगे। आज धरती माँ की यही हालत हमने बना दी। अब ये गिर चुकी है, अब ये टूट चुकी है, अब इसमें हिम्मत नहीं रही कुछ पैदा करने की। हम 1 बैग यूरिया की बजाय 2 डालते हैं, 2 की बजाय 3 डालते हैं, 3 की बजाय 4 डालते हैं। जिस 1 हेक्टेयर में 13 केजी यूरिया था, आज वहां 10-10 बैग यूरिया, 20-20 बैग यूरिया डीएपी डालते हैं। अब इतना जहर उत्पादन के लिए, और इतना जहर पड़ेगा उतना ही वो फसलों में आएगा, जितना आहार में आएगा वो हमारे शरीर में आएगा। इसलिए कैंसर की स्पीड पिछले 2 साल में 3 गुना बढ़ी। हाइपरटेंशन हर व्यक्ति में दिखाई देता है। अपने देश में ब्रेन हेमरेज से हर 4 मिनट में एक आदमी मर रहा। ये जहर आहार में मिल रहा। शरीर बहुत उत्तेजक बन चुके हैं। और इससे खतरनाक बात जो सबसे घातक होने वाली, वो ध्यान से सुनना। ये रिपोर्ट मनसुख मांडविया जी ने मेरे को दी है, जो स्वास्थ्य मंत्री भी। एम्स के डॉक्टर्स ने पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, जहां यूरिया डीएपी जंतुनाशक ज्यादा डाली जाती हैं, वहां के इलाकों के लोगों पे रिसर्च किया, लड़के लड़कियों पे रिसर्च किया। और रिपोर्ट क्या आई है? ध्यान से सुनो। रिपोर्ट आई है कि अब इससे लोगों का डीएनए ही चेंज हो रहा है। आने वाले समय पर ये यूरिया डीएपी जंतुनाशक यूं ही पड़ता रहा तो हमारे बच्चों में आगे बच्चे पैदा करने की क्षमता ही खत्म हो रही है। ये रिपोर्ट नई आई है, लेटेस्ट। इससे ज्यादा दुनिया की बर्बादी क्या हो सकती है? शरीर को रोगी कर दिया, परिवारों को नष्ट हो जाएंगे। हम अब नहीं बदले तो फिर कभी नहीं। सही समय है, इस समय आप लोगों ने इसको चेतना पड़ेगा। और खेडूत भाई तो आप में है नहीं, उनकी ज्यादा मैं चर्चा करता खेती बाड़ी की। अब हमने प्राकृतिक खेती, गो आधारित ये खेती, हम गोबर, गोमूत्र इसका प्रयोग खेतों में करते हैं, आच्छादन का प्रयोग करते हैं, जीवामृत, घन जीवामृत बनाते हैं,
नीम, धतूरा, आक, चिराता, गिलो, इससे हमारी जंतुनाशक हम दवाई बनाते हैं। और इसमें मेरा उत्पादन, और मेरा नहीं, जितने भी प्राकृतिक खेती देश में करते हैं उनका उत्पादन बढ़ रहा है, क्योंकि धरती बंजर से निकलकर उत्पादकता की ओर बढ़ रही है। इसका ऑर्गेनिक कार्बन जो खत्म हो गया उसको बढ़ाने का काम हो रहा है। रासायनिक खेती में धरती का ऑर्गेनिक कार्बन घटता है, वो बंजर बनती है, और प्राकृतिक खेती से ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता, वो उपजाऊ बनती है। उपजाऊ जमीन ज्यादा पैदावार देगी और बंजर जमीन पैदावार नहीं देगी। सीधा साइंटिफिक सिस्टम। मैं दुनिया के साइंटिस्ट को चैलेंज करता हूँ और सब जगह करता हूँ। अभी मैं पूषा इंस्टीट्यूट में था दिल्ली में, जो ICR का सेंटर है, उसमें खेडूत पूरे देश के बुलाए गए थे और मैं ऐसे ही बोल रहा था जैसे बोलता हूँ। वहां सैकड़ों साइंटिस्ट बैठे थे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। आप में भी कोई हो तो मैं चैलेंज करता हूँ, और जो मिले उनको भी मेरे चैलेंज सुना देना। मैं घोषणा करता हूँ कि जंतुनाशक दवाई, यूरिया, DAP जो हम खेतों में रासायनिक यूज करते हैं, उससे धरती का ऑर्गेनिक कार्बन घटता है, बढ़ता नहीं है। और मेरी प्राकृतिक खेती से धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, 1 साल में डबल होता है। यदि कोई दुनिया का एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ये सिद्ध कर दे कि यूरिया, DAP से धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता, तो हम इसे गुरु स्वीकार कर लेंगे। महापाप किया जा रहा है। जीव जंतुओं की प्रजातियां लुप्त हो गई। माँ के दूध में, पशुओं के दूध में यूरिया आ गया। पशुओं में भी कैंसर हो रहा है। धरती में ही कैंसर कर दिया तो बचेंगे कैसे? आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए हमने पूरे प्रदेश में खेडूतों के माध्यम से बहुत बड़ा अभियान चला दिया। मातृशक्ति को हमने जोड़ा, जितनी सखी मंडल प्रदेश में। अब मैं हर तालुका लेवल पर उनकी मीटिंग ले रहा हूँ, बड़े बड़े सम्मेलन कर रहे हैं। राजभवन में 4 दिन लगातार 1,000 बहनों को हमने बुलाया। उनको हम मास्टर ट्रेनर बना रहे हैं प्राकृतिक खेती का। एक बहन पूरे गांव को बदलेगी, उसका एक अभियान चला रहे हैं। 10-10 गांव के क्लस्टर हमने बना दिए खेडूत के, जो पूरा अभियान प्रचार का चला रहे हैं। हमने प्राकृतिक यूनिवर्सिटी, विश्व की पहली यूनिवर्सिटी गुजरात में बन चुकी है, प्राकृतिक यूनिवर्सिटी। और कल माननीय अमित शाह जी अपने अहमदाबाद में थे, मीटिंग उन्होंने ली, हम साथ में थे। तो उनकी बहुत प्रबल इच्छा है कि धरती को जहर मुक्त करना है, लोगों के स्वास्थ्य को बचाना है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि खेडूत उत्पादन करेंगे, और आप जितने भाई बंधु योगी लोग बैठे हैं, अपनी जितनी भी आपकी शाखाएं चलती हैं योग की, उनमें लोगों को प्राकृतिक आहार लेने के लिए प्रेरित करें। हमारा ये अभियान ऑर्गेनिक नहीं, प्राकृतिक है। ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक खेती में जमीन आसमान का अंतर है। हमारी खेती बिल्कुल पर्यावरण को बचाने वाली है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग और रासायनिक खेती पर्यावरण को बर्बाद करती है। अंत में मोटी बात समझिए, इस धरती पर जो ग्लोबल वार्मिंग का संकट अब आया है, और ये बढ़ने वाला ही यदि नहीं संभले, तो इसमें 24%, 24% योगदान रासायनिक खेती का और जैविक खेती का। जैविक खेती में गोबर की खाद बहुत डालनी पड़ती है, ट्रॉली की ट्रॉली डालनी पड़ती है। लेकिन प्राकृतिक खेती में 10 किलो ही गोबर, गोमूत्र 1 एकड़ में काम आता है। ये अंतर इतना बड़ा। जब हम गोबर की खाद भारी डालते हैं तो उसमें मीथेन जैसी गैसेज पैदा होती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देती है। और हम जो 10 किलो गोमूत्र, 10 किलो गोबर यूज करते हैं, उसमें गैस जो बनती है, उसमें सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार है। वो गैस उन सूक्ष्म जीवाणुओं का भोजन है, वो पर्यावरण को दूषित नहीं होने देती।
ये बहुत बड़ा अंतर है जैविक खेती और प्राकृतिक खेती। अब हो क्या रहा है आप समझिए, 60% ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है। कितने परसेंट? 60%। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे वृक्षों का भोजन है। यदि हम सब वृक्षारोपण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का संकट नहीं होगा। लेकिन जो मीथेन जैसी गैसें जो ऑर्गेनिक खेती से उत्पन्न होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से 20 से 22 गुना ज्यादा खतरनाक है। कौन सी? मीथेन गैस। और अगली बात ध्यान से सुनना, यूरिया और डीएपी जब खेडूत किसान खेत में डालता है और ये नाइट्रोजन इनका ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस पैदा होती है। समझ में आई? और नाइट्रस ऑक्साइड गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना ज्यादा खतरनाक है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। समझ में आई? 312 गुना, यानी कि 60% योगदान ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का और उससे 20 से 22 गुना ज्यादा मीथेन का और 312 गुना ज्यादा यूरिया और डीएपी से पैदा होती है। इसलिए ये ग्लोबल वार्मिंग है ना, इसकी कोई दवाई नहीं। हम वैक्सीन कोरोना की तो आ गई, बाकी भी आ गई, लेकिन हम यहाँ बैठे बाहर तूफान आए, कौन सा इंजेक्शन भेजोगे उसके लिए? कौन सी दवाई उसको रोकने के लिए? अतिवृष्टि, अनावृष्टि, विनाश जो धरती का होगा उसका मेरे आप पे कोई इलाज नहीं। आज ग्लोबल वार्मिंग हमारे कर्मों का दुष्परिणाम। आओ हम संकल्प में, यदि हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो 24% ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं और 24% ग्लोबल वार्मिंग का पर्यावरण कम हो जाए, बच जाए, तो हम सैकड़ों साल और सुख से जीवित रह सकते हैं। इतना बड़ा काम आप लोग कर पाएंगे यदि आप उपभोक्ता प्राकृतिक आहार लेंगे। खेडूत पैदा करेगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, खेडूत बचेगा, पर्यावरण बचेगा, पानी दूषित होने से बचेगा, धरती माँ जहरीला होने से बचेगी, गौ माता का पालन होगा और किसान की आय बढ़ेगी और आप सब स्वस्थ और निरोग बनेंगे। लंबी चर्चा देने की बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं आदरणीय इनकी बहन सोनी जी हमारे बीच में हैं, आदरणीय चैतन्य भाई देसाई जी, केवल भाई रोकड़िया जी, बरमोरा साहब, ये आपके वो भले और सज्जन विधायक हैं जो आप सबके स्वास्थ्य की भी चिंता करते हैं और सबके जीवन की समृद्धि की कामना करते हैं। आज सब चल करके हमारे इस मिशन में जुड़े, मैं उनका भी आभार व्यक्त करते हुए शीशपाल भाई को, उनकी पूरी टीम को और आप सभी ट्रेनर्स को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। अब हमने मिल करके योग का आधार प्राकृतिक आहार, इस मिशन को पूरे प्रदेश का आंदोलन बनाना है। आपका धन्यवाद। ओम बहुत 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 धन्यवाद। परमादरणीय महामहिम महोदय श्रीमान देवव्रत आचार्य जी अति व्यस्तता के बावजूद हमारे बीच उपस्थित रह करके हम सब बहुमूल्य उद्बोधन एवं मार्गदर्शन प्रदान किया है। हम सब आपके ऋणी हैं। સૌને નમ્ર નિવેદન છે પોતાનું સ્થાન જ્યાં સુધી મહામહિમ રાજ્યપાલ મહોદય અને 85 મહાનુભાવો અહીંયાથી વિદાય ન લે ત્યાં સુધી પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખશે। આપના શિસ્ત માટે અમને સહકારની જરૂર છે। ધન્યવાદ। રાષ્ટ્રગાન પણ કરવાનું છે તો આપણે આ ગરિમા જાળવીશું।